વ્યક્તિની વાત કરવી છે, કરમસદના કિસાનની વાત કરવી છે, જગત જેને લોખંડી પુરુષ તરીકે ઓળખે છે, જેની 182 મીટર ઊંચી પ્રતિમા નર્મદાના કાંઠે વાદળ સાથે વાતો કરે છે, એની વાત કરવી છે. મેકર ઓફ મોડર્ન ઇન્ડિયા, અખંડ ભારતના શિલ્પી તરીકે આપણે આજે ભારતનો નકશો કાશ્મીરથી લઈને કન્યાકુમારી સુધી દોરી શકીએ છીએ, એના મૂળમાં કોઈ હોય તો એ છે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ. રાજનીતિની દુનિયાનો સાધુ પુરુષ એટલે સરદાર. ત્યાગ, સમર્પણ, રાષ્ટ્રભક્તિ અને ચારિત્ર્ય, આ 4 સ્તંભ ઉપર પોતાનું જીવન વિતાવ્યું એ છે સરદાર. આમ તો ગળથુથી માંથી જ સંસ્કાર મળતા હોય છે. 1857નો સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ, જેમાં મંગલ પાંડે, ઝાંસીની રાણી, તાત્યા ટોપે, હાજી મુલ્લા ખાન, આ બધાએ આખા દેશમાં સૌથી પહેલા આઝાદ ભારતની જે ચળવળ ઉપાડી હતી, તેમાં કરમસદમાંથી ઝાંસીની રાણીના લશ્કરમાં જોડાવા માટે મહેનત કરે એ પટેલનું નામ એટલે ઝવેરભાઈ પટેલ. આપણા સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલના પૂજ્ય પિતાશ્રી હળ મૂકીને હથિયાર ધારણ કર્યા હતા એ બાપનો દીકરો એટલે સરદાર. સરદારના માતા લાડબાઈ માએ પોતાના સ્વભાવે બહુ કરકસર વાળા હતા. એ કરકસરનો સ્વભાવ વલ્લભભાઈના જીવનમાં જીવંત પર્યંત રહ્યો, એટલે દેશની એક ટાંચણી પણ વધારે જવા ના દીધી. પોતાના મામા ડુંગરભાઈના ઘરે નડિયાદમાં વલ્લભભાઈનો જન્મ થાય અને ભણતર પણ ત્યાં જ થાય, ત્યારથી જ લીડરશિપના ગુણ એમનામાં આવ્યા. અન્યાય સામે પ્રતિકાર કરવાનું એ બાળપણમાં જ શીખેલા. પોતાના બાપુજી પાસેથી 1857ની વાતો સાંભળેલી હોય એ માણસનું જ સ્ટેચ્યુ બને અને વાદળો સાથે વાતો કરે. લાડબાઈ માની કરકસર, ઝવેરભાઈની રાષ્ટ્રભક્તિ અને મક્કમ મનોબળનો ત્રિવેણી સંગમ એટલે વલ્લભભાઈ. ચાલો, લીડરશિપના 1 સદી જૂના છતાંય એવરફ્રેશ કોચિંગ ક્લાસમાં જ્યારે એક ફર્સ્ટ ક્લાસ વર્લ્ડ લેવલ સરદારના નામની પ્રતિમાની પ્રતિભાને ઘાટ ઘડાતો હતો, એ સમયમાં સ્વાદિષ્ટ અને પૌષ્ટિક વાનગીની રેસીપી ચાખવા, જેમ કૃષ્ણની બાળલીલામાંથી કુરુક્ષેત્રના કરવૈયાનો આભાસ મળે, એમ સરદારના ઓછા જાણીતા યૌવનમાં માત્ર મનોબળથી માણસ કેવી રીતે મંજિલે પહોંચે એની એક વધુ સાબિતી નિરખવા. रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम. કેમ ગીત ગાય છે? શું આ ગીત ગાવાનો સમય છે? તમે ગપ્પા મારવામાં મોડું કરો ને અમે સમય પસાર કરવામાં ગીતો ગાઈએ તો એમાં ખોટું શું છે? શિક્ષકે વલ્લભભાઈને ક્લાસમાંથી બહાર કાઢી મૂક્યા. વલ્લભભાઈને જોઈને આખો ક્લાસ બહાર જતો રહ્યો અને બીજે દિવસે પણ સજ્જડ હડતાલ. પ્રિન્સિપાલે બોલાવ્યા તો સ્પષ્ટ કહ્યું, શું થયું? વાક માસ્ટરનો છે, માફી માંગે તો એ માંગે, અમે નહીં. આવો જ બહિષ્કાર ફરજિયાત પોતાની દુકાનેથી પેન્સિલ નોટબુક લેવા ફરજ પાડનાર શિક્ષકો સામે 6 દિવસની લાંબી હડતાલથી કરેલો. (1893) ઘણા નામનું નાનકડું ગામ, એ ગામમાંથી ઝવેરબેનનું માગું આવ્યું. ત્યારે ઝવેરબેનની ઉંમર 13 વર્ષ અને વલ્લભભાઈની ઉંમર 18 વર્ષ હતી. બંનેના લગ્ન થયા. 16 વર્ષ બંનેનું દાંપત્ય જીવન ચાલ્યું. એમાંય 8 વર્ષ તો વલ્લભભાઈનું વકીલાતનું ભણતર ચાલુ છે એમ કરીને ઝવેરબેન પિયર રહ્યા. ત્યાર પછીના 8 વર્ષના પ્રસન્ન દાંપત્ય જીવનમાં 2 બાળકોનો જન્મ થયો, ડાયાભાઈ અને મણીબેન. આણંદની કોર્ટમાં સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ કેસ લડતા હોય છે. કેસની છેલ્લી સુનાવણી હતી અને એક નિર્દોષ વ્યક્તિને ખૂનના કેસમાં ફાંસીની સજા મળી જાય એમ હતી. વલ્લભભાઈ જોરદાર દલીલો કરે છે અને તે નિર્દોષ માણસને બચાવી લે છે. વલ્લભભાઈ, આવી જોરદાર દલીલ કરીને કેસ જીત્યા છો તો કેમ ઢીલા પડો છો અત્યારે? અરે વલ્લભભાઈ, આ તારમાં તો એમ લખ્યું છે કે કામા હોસ્પિટલમાં તમારી પત્ની ઝવેરબાઈનું અવસાન થયું છે. હા. આ તાર વાંચ્યા પછી પણ તમે આવી ખતરનાક દલીલ કરી, એ પણ આટલા જુસ્સાથી? હા, એમાં શું? મારી પત્ની મરી ગઈ એ મારા નસીબનું, પણ આ માણસ જે અહીંયા ઊભો છે એ નિર્દોષ હતો. એને બચાવવું એ મારું કર્તવ્ય હતું. મારા નસીબ માટે મારા કર્તવ્યને ઠેસ કેમ પહોંચાડી શકું? अरे सुना है आज गांधी आ रहे हैं भाषण देने. एक और समाज सुधारक.
लगता है गांधी आ गए। मालवणकर, ब्रह्मचर्य का पालन और संडास साफ करने से आजादी मिलेगी, उससे तो ये खेल ही अच्छा है। अंग्रेजी और अंग्रेजों से इतना मोह, ये हमें कहाँ ले जाएगा? मेरे आग्रह करने पर श्रीमान तिलक जी और जीना साहब अपनी मातृभाषा में बोलकर उसे जो सम्मान दिया है वो बहुत बड़े आनंद की बात है। ब्रिटिश साम्राज्य से वफादारी का ऐसा प्रस्ताव पास करके हमें हमारी हीनता का परिचय देते हैं। इस प्रणाली को खत्म करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमारे आत्मसम्मान के विरुद्ध है। ये सुनकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने अंग्रेजी वस्त्र का त्याग कर दिया और गांधी जी की इस मुहिम के साथ जुड़ गए। मैं ऐसा कार्य करता चाहता हूँ जो बाकी सब कुछ छोड़कर पूरे समय मेरे साथ रह सके और खेड़ा सत्याग्रह की जिम्मेदारी संभाल सके। तो कौन होगा वो पहला सत्याग्रही? हमें बापू का कहा करके दिखाना है। सामूहिक, अहिंसक और असरकारक की शक्ति को हमें साबित करना है। और आप लोग सब एक मत होकर ये तय कर ले, हम अपनी मर्जी से लगान नहीं भरेंगे। तो मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि किसी भी सरकार के पास ऐसा कोई साधन नहीं है जो आपका इरादा बदल सके। तो बोलो, कौन कौन तैयार है? कुछ लोगों को ये डर है कि ये सरकार हमारी जमीन जब्त कर लेगी। मैं पूछता हूँ कि क्या मतलब है इसका? कैसे कर सकती है तुम्हारी जमीन जब्त? क्या तुम्हारी जमीन को उखाड़कर अपने सर पर उठाकर उसे लंदन ले जाएंगे? और वैसे भी ये काम करने के लिए सरकार को गांव या तहसील के आदमी की जरूरत पड़ेगी। होना तो ये चाहिए कि ये काम करने के लिए सरकार को एक भी आदमी ढूंढे ना मिले। पूरी तहसील की हवा हम ऐसी बनाएंगे कि उसमें स्वराज की सुगंध हो। ये पैसे हमारे गांव की सभी बहनों ने इकट्ठा किए हैं। क्या हुआ? सभी सत्याग्रह में भाग लेने के लिए तैयार है? आप जो कुछ भी कहे हम सब करने को तैयार है। क्यों? आप हमारे सरदार जो ठहरे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जय! सरदार वल्लभ भाई पटेल की जय! सरदार वल्लभ भाई पटेल की जय! દાંડી કૂચ વખતે ગુજરાત પોતાનો યોગ્ય હિસ્સો આપે તે માટે પ્રવાસે નીકળ્યાના પહેલા જ પ્રસંગે રાસ ગામેથી પ્રચાર કરતા 7મી માર્ચે જાહેર સભામાં ધરપકડ થઈ અને કારાવાસ થયો। સરદાર, જેલમાં તમને કેવી રીતે રાખે છે? મહાદેવ, ચોર લૂંટારાની જેમ રાખે છે। તમને જેલમાં કોની સાથે રાખ્યા છે? રીઢા ગુનેગારના વોર્ડમાં રાખે છે। હું આઝાદી માટેનો રીઢો ગુનેગાર નથી। હું આઝાદી લઈને જ રહીશ, એટલે મને બરાબર વોર્ડમાં રાખ્યો છે। સુવા માટે? સુવા માટે કામળો આપે છે। એમાં માકડ ને મચ્છર બધું હોય છે। એ બધાની સાથે સુવાની મજા આવે છે। એક દી નીંદર નહોતી આવી, બીજે દિવસથી ઘસઘસાટ આવી જાય છે। ખોરાકમાં શું આપે છે? ઘોડાને હાલે એવો રોટલો અને દાળ મળે છે। ખપે એવું નથી મળતું? આપણે તો આઝાદી ખપે, રોટલા થોડા ખપાવાના હોય? મસ્કરી ના કરો સરદાર, રોટલા ચવાય એવા તો આપે જ છે ને। હા, ઘણીવાર નથી ચવાતા, પણ પાણીમાં બોળી દઉં છું। પાણીમાં બોળી દઉં પછી કાંકરી હોય એ નીચે બેસી જાય અને પછી ચવાઈ જાય। માતા લાડબાના મૃત્યુના સમાચાર જેલમાં મળતા જ સરદાર વિનંતી કરે છે કે તેની અંત્યેષ્ટિમાં જવા દો। અંગ્રેજો બહુ જ હોશિયાર હતા। વલ્લભભાઈને પોતાના મા માટે જવું છે એટલે શરતોનું લિસ્ટ તૈયાર કર્યું। જો તમે દેશની આઝાદીની ચળવળમાં ભાગ ના લો તો જ તમને તમારી બાની અંતિમ વિધિમાં જવા દઈએ। હવે સગીમાં મરી ગઈ છે તો ભારતમાંનો છેડો કેમ મુકાય? સગીમાં મરી તો ગઈ છે, મુબારક, એમની આત્માને ભગવાન સ્વર્ગ આપે। પણ એક માં મારી હજી જીવે છે અને તે સાંકળમાં બંધાયેલી છે, એને મારે આઝાદ કરવી જ પડે। अब स्वराज आएगा, हमारी अपनी सरकार होगी।
इसलिए अब हमें नए कांग्रेस अध्यक्ष का भी चुनाव करना है। जो अध्यक्ष होगा उसे ही सरकार बनाने के लिए बुलाया जाएगा और आज़ाद हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री भी वही होगा। वही मौलाना ने पिछले 6 वर्षों में ये जिम्मेदारी अच्छी तरह से संभाली। अब मैं चाहता हूँ कि ये बोझ कोई और संभाले। 15 में से 12 प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सरदार का नाम प्रस्तावित किया है। कुछ एक ने कृपलानी का नाम भी लिया है, तो कृपलानी ने अपना नाम जवाहर के हक में वापस ले लिया। तो अब रह जाते हैं सरदार और जवाहर। पर मैं चाहता हूँ कि चुनाव एक मत से हो, ताकि किसी के भी मन में शौक ना रह जाए। जवाहर, तुम्हारे नाम का प्रस्ताव किसी भी प्रदेश कमेटी की ओर से नहीं आया है, सिर्फ वर्किंग कमेटी ने ही सुझाव रखा है। तुम्हारा क्या कहना है? मैं अपना नाम वापस लेता हूँ। लेकिन तुम्हारा रहना भी बहुत जरूरी है देश के लिए। तुम दोनों को सरकार के 2 पहिए की तरह काम करना है। क्या तुम जवाहर के साथ काम कर सकते हो? ये 3 टांगों की दौड़ कब तक चलती रहेगी? एक तरफ से वाइस रॉय और दूसरी तरफ है जीना। बीच में हम खींचे जा रहे हैं। क्या लगता है मेनन तुम्हें? मुझे भी लगता है ये मिली जुली सरकार तो नहीं चलेगी। पूरे देश का एक यूनियन बनाने का प्लान कामयाब नहीं होगा, क्योंकि जिन्ना अपने पाकिस्तान की मांग नहीं छोड़ेंगे। दंगे सारे देश में फैल जाए और सिविल वॉर हो जाए। इससे अच्छा हम डोमिनेंस स्टेटस के तहत देश के बंटवारे के लिए अभी से राजी हो जाए, वरना बाद में अगर मजबूरन बंटवारा करना पड़ा तो पता नहीं देश का नक्शा क्या होगा। अगर अंग्रेजों के रहते बंटवारा होता है तो जिन्ना पंजाब और बंगाल के गैर मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज का दावा नहीं कर सकते। सत्ता आसानी से सौंपी जा सकती है और ये सब शांति से हो सकता है। 2 अलग अलग सरकारें, 2 अलग अलग संविधान, 2 अलग अलग देश। 20 ફેબ્રુઆરી 1947 બ્રિટિશ વડાપ્રધાન ક્લેમિટ એટલી પાર્લામેન્ટમાં ડેક્લેરેશન ઓફ ઇન્ડિપેન્ડન્સની ઘોષણા કરે છે, જેમાં 30 જૂન 1948 સુધીમાં બ્રિટિશરો ભારત છોડી દેશે અને સાથે માઉન્ટ બેટનની ભારતના નવા વાઇસરોય તરીકે નિમણૂક કરે છે. मैं तो फौजी आदमी हूँ, कोई पॉलिटिशियन नहीं। पर ये बताइए मिस्टर पटेल, आप पॉलिटिक्स में कैसे आए? योर एक्सीलेंसी, मैं अपने बारे में बात करने नहीं आया हूँ। यहाँ की स्थिति बहुत गंभीर है, मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगा। पर मिस्टर पटेल, ये सिचुएशन समझने के लिए आपकी और बाकी सब लीडर्स की सिचुएशन समझना जरूरी है। ये निजी बात करने का समय नहीं है योर एक्सीलेंसी। मैं यहाँ पर आपको ये बताने आया हूँ कि हम अपने नए वाइसरॉय से क्या आशाएं रखते हैं। आप बुरा ना माने मिस्टर पटेल, पर आपकी राय के साथ साथ मैं आपको भी जानना चाहता हूँ। तो फिर मैं चलता हूँ। ठहरिए मिस्टर पटेल, मैंने आपके बारे में बहुत सुना था और सच ही सुना था। हमने बाकी सब लीडर्स से बातें की है, लेकिन आपकी राय लिए बगैर कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। मेरी आपसे विनती है कि कुछ भी कीजिए, लेकिन देश का बंटवारा मत कीजिए। बट करेंट सिचुएशन देखते हुए तो देखिए, इस मिलीजुली सरकार से ना मुस्लिम लीग खुश है ना कांग्रेस। ये आप ठीक कह रहे हैं। वो एक दूसरे को हुक्म के साझेदार की तरह नहीं, पर दुश्मन की तरह देखते हैं। तो आपका क्या सुझाव है? इस मिलीजुली सरकार को रद्द कर दीजिए। ये क्या कह रहे हैं आप मिस्टर गांधी? एग्जीक्यूटिव काउंसिल को रद्द कर दीजिए, सत्ता मुस्लिम लीग के हाथ में सौंप दीजिए और जिन्ना को राज करने दीजिए। बट ये कांग्रेस को मंजूर होगा? कह नहीं सकता, लेकिन वो भी चाहते हैं कि देश का बंटवारा ना हो, तो यह एक ही रास्ता बचा है। मालूम नहीं मिस्टर जिन्ना क्या कहेंगे।
बापू, आप तो महात्मा है, ऐसी उदारता आपके ही मन में हो सकती है। बापू, इतनी बड़ी गैर मुस्लिम आबादी माइनॉरिटी सरकार को कैसे बर्दाश्त कर सकती है? और हमने आपके इस विचार पर बहुत गहराई से हर पहलू से सोचा, लेकिन इस बात को कोई मानने के लिए तैयार नहीं है कि देश को मुस्लिम और जिन्ना के हाथों में सौंप दिया जाए। अब मैं तो क्या कहूँ, आप लोग जो ठीक समझे वो करें। करोड़ों लोगों का भला जो आप देख पा रहे, अब मैं नहीं देख पाता। ठीक है, वाइस रॉय को जाके कह दूंगा कि भाई मुझे माफ करो, मैं कांग्रेस को मना नहीं पाया। आज इस मीटिंग में फैसले लिए जाएंगे। उनका इफेक्ट सिर्फ इस कंट्री पर ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड पर होगा। इसलिए मौजूदा हालात को देखते हुए और आप सब लीडर्स से बात करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हुकूमत जल्द से जल्द आपके हाथों सौंपी जानी चाहिए। हमें पूरी उम्मीद है कि आपके इन फैसलों से पैदा होने वाले हालात को संभालने के लिए आप सब तैयार हैं। सचिना, मैं आपसे आखिरी बार पूछता हूँ, क्या आप कैबिनेट मिशन प्लान के मुताबिक एक यूनाइटेड इंडिया को मानने के लिए तैयार हैं? हरगिज नहीं। तब तो हमारे सामने एक ही रास्ता रह जाता है, इस देश के बंटवारे का। इसलिए मैं आप सबसे दरखास्त करता हूँ कि बंटवारे के इस प्लान को अमन और दोस्ती के नाम पे सब मान लें। मैं आप सबसे दरखास्त करता हूँ ये प्लान आप अपनी अपनी वर्किंग कमेटी को दिखा दें और आज रात तक उनका फैसला आप हमें लिख कर भिजवा दें। नहीं, ये मुमकिन नहीं। मिस्टर जिन्ना, अब टाल मटोल की कोई गुंजाइश नहीं। जो भी तय करना है वो अभी करना है और साफ साफ करना है। जेंटलमैन, इस बंटवारे की कार्यवाही के लिए सिर्फ 73 दिन बाकी है। योर एक्सीलेंसी, इस बंटवारे से जो दो मुल्क पैदा हो रहे हैं, मेरी राय में इनके नाम हिंदुस्तान और पाकिस्तान रखा जाए। मिस्टर जिन्ना, दो मुल्क पैदा नहीं हो रहे बल्कि एक मुल्क से छोटा सा टुकड़ा अलग हो रहा है। मुस्लिम लीग अपने टुकड़े को जो नाम देना चाहती है वो दे सकती है। इस देश का नाम इंडिया है और इंडिया ही रहेगा। योर एक्सीलेंसी, वक्त बहुत कम है, इसीलिए बहुत जरूरी हो गया है कि रियासतों के मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। रियासतें अपनी आप में पूरी तरह से आजाद हैं। उन्हें अपने साथ जुड़ने के लिए ना आप मजबूर कर सकते हैं ना हम। मिस्टर जिन्ना, ये सच है कि मिशन प्लान के तहत मजबूर तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जब तक सही बंदोबस्त नहीं हो जाता तब तक अपने आप को आजाद नहीं घोषित कर सकते। आप भूल रहे हैं मिस्टर नेहरू, उनकी अपनी हुकूमत है, वो खुद मुख्तार हैं। वो खुद मुख्तार है? किस लिए? आपस में लड़ मरने के लिए? खुद मुख्तार तो वो होता है मिस्टर जिन्ना जो अपने पैरों पर खड़ा रह सके, जो दूसरे देशों के साथ संबंध बना सके, बाहर के हमलों का मुकाबला कर सके। हमारे यहाँ 562 रियासतें हैं, लेकिन उनमें से कोई भी उस लायक नहीं है। मेरे ख्याल से रियासतों का ये मसला सुलझाने के लिए अलग से एक स्टेट डिपार्टमेंट बनाना चाहिए। हमारी गारंटी सिर्फ 15 अगस्त तक है। अब समझदारी इसी में है कि समय को देखकर समझ से काम लीजिए। आप हमें धमकी दे रहे हैं? नहीं, याद दिला रहा हूँ। बंटवारे की कार्यवाही को जब तक अंजाम नहीं दिया जाता तब तक हम चाहते हैं कि फौज ब्रिटिश हुकूमत के देखरेख में काम करे। जिस मुल्क के पास अपनी फौज नहीं, वो मुल्क किस काम का? 15 अगस्त से पहले पाकिस्तान की फौज सरहद के उस पार पहुंच जानी चाहिए।
हम भी यही चाहते हैं। लेकिन 15 अगस्त के बाद कश्मीर का क्या होगा? देखिए, हम तो आप पर कोई भी दबाव नहीं डाल रहे हैं। आप कश्मीर के प्रधानमंत्री हैं। अपने महाराज से कहिए कि अगर वो इंडिया के साथ आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, अगर वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं तो उनकी मर्जी। तो फिर आप हमसे क्या चाहते हैं? आपका आशीर्वाद चाहते हैं। आप जैसे कितने और महाराजाओं ने हमारा साथ दिया है, उसका ही नतीजा है कि हम एक महान राष्ट्र की स्थापना करने में लगे हैं। बाकी सभी चीजों के साथ साथ इंटेलिजेंस ब्यूरो का भी बंटवारा होना चाहिए। ये नहीं होगा। देश का बंटवारा हो सकता है मिस्टर जीना, उनके राज नहीं बांटे जा सकते। और बंटवारे के बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम और भी बढ़ जाएगा। इंडिया से अलग आप हो रहे हैं, आप अपना इंटेलिजेंस ब्यूरो खुद बनाए। हम अपने मुल्क के अंदर क्या करते हैं इससे आपको कोई ताल्लुकात नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान आपसे अपने हिस्से का एयरफोर्स मांग रहा है और वो लेके रहेगा। अपने ही बलूच और पठान भाइयों पर हमला करने के लिए हम पाकिस्तान की मदद नहीं कर सकते। इस वक्त एयरफोर्स का कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा। लेकिन आप रातों रात हमें भिखारी बनाकर सड़क पर नहीं ला सकते। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हिंदुस्तान सरकार आप जैसों का और राजवंशों का पूरा ख्याल रखेगी। आपके महल, नौकर चाकर, सारी संपत्ति आपके साथ ही रहेगी। लेकिन हमारी रोजमर्रा की जरूरियातों पर जो खर्चा होता है उसका क्या होगा? उसके लिए भी एक निश्चित रकम आपको पीवी पर्स के तौर पर मिलेगी, टैक्स फ्री। क्योंकि दो देश बनने जा रहे हैं, इसलिए यह वाजिब है कि हिंदुस्तान के 200 करोड़ का कैश रिजर्व आधा आधा बांट लिया जाए। रोकड़े का बंटवारा करते समय दोनों देशों की जनसंख्या और क्षेत्रफल को भी ध्यान में रखना चाहिए। बाकी रहे आधे आधे की बात मिस्टर जीना, वो तो हम कभी नहीं मान सकते। लेकिन योर एक्सीलेंसी, अपने इस बचे हुए फाइनेंशियल ईयर को चलाने के लिए पाकिस्तान को कम से कम 100 करोड़ रुपया तो लगेगा। योर एक्सीलेंसी, हम पाकिस्तान को सिर्फ 75 करोड़ रुपए दे सकते हैं। 20 करोड़ अभी और बाकी 55 करोड़ हिसाब होने के बाद। ये नहीं हो सकता। नवाब साहब इससे कभी नहीं मानेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि ये सब इतना आसान है? हम भी देखते हैं आपके नवाब साहब इस पर कैसे दस्तखत नहीं करते। और जाके कह देना उनसे कि जब उनकी प्रजा उनके खिलाफ हो जाएगी तब मिस्टर जीना भी उनको मदद नहीं कर पाएंगे। जाइए। जेंटलमैन, बजाय इस तरह उलझने के मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब समझौते पर आने की कोशिश करें। योर एक्सीलेंसी, पाकिस्तान हिंदुस्तान के 200 करोड़ रुपए का पब्लिक डेप्ट का भार अपने ऊपर हरगिज नहीं लेगा। बिना गुटली का आम नहीं होता मिस्टर जीना। हिंदुस्तान की मिल्कत में अगर हिस्सा चाहिए तो उसके कर्ज का भी बोझ उठाना पड़ेगा ना। सर, ज्यादातर लोग जिन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कर्ज दिया था वो अभी भी हमारी सीमाओं में रहते हैं। तो सर, जरा सोच कर देखिए, अपने ही देश के लोगों को अगर अपने ही पैसों के लिए पाकिस्तान के भरोसे रहना पड़े तो तकलीफ किसे होगी? हमारे ही लोगों को ना। इससे तो बेहतर है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सारे कर्ज का बोझ अपने ही सर पर ले ले। तो पाकिस्तान के हिस्से का क्या होगा? उसे यूं मान लेते हैं जैसे पाकिस्तान ने हिंदुस्तान से उतना पैसा उधार लिया है जिसे वो धीरे धीरे किस्तों में उतार दे। सर, सारी दुनिया की निगाहें इस वक्त अपने देश के ऊपर लगी है। क्यों ना हम थोड़ी सी उदारता दिखाएं? कभी कभी मैं खुद को सवाल करता हूँ एचएन, मैं यहाँ पर क्यों हूँ और क्या कर रहा हूँ, और जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ या नहीं। अगर ठीक है तो आने वाले लोग हमें दुआएं देंगे, अगर गलत है तो गालियां मिलेगी। कोई नहीं सोचेगा कि कितनी ईमानदारी से देश की सेवा की है। कोई नहीं सोचेगा।
ये हालत में यही करना उचित था। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. સ્વાતંત્ર્ય ભારતની પહેલી સરકારમાં સરદાર પટેલ ગૃહમંત્રી બન્યા. ભારતના પહેલા ગૃહમંત્રી તરીકે કાનૂન વ્યવસ્થા જાળવી રાખવા સાથે પાકિસ્તાનથી આવતા શરણાર્થીઓની ગંભીર સમસ્યાઓનું નિરાકરણ કરવાનું શરૂ કર્યું. सोमनाथ तो एक प्रतीक है यहाँ के प्राचीन गौरव का। इसका बार बार टूटना और बनना इस बात का साक्षी है कि संस्कृति किसी के मिटाई नहीं मिटती। सरदार साहब, अगर यहाँ मंदिर बनेगा तो अयोध्या, काशी और मथुरा का क्या होगा? देखिए, यहाँ पर मंदिर बनाने के लिए किसी मस्जिद को गिराने की जरूरत नहीं है, और अयोध्या, काशी, मथुरा की तो बात ही कहीं और है। वहाँ के मसले को एक दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुँचाए बिना आपसी बातचीत और सूझबूझ से सुलझाए जा सकते हैं। मेरी दरखास्त है, आपसी बातचीत इस मकाम पर मत तोड़िए। हम चाहते हैं कि किसी तरह से हैदराबाद के साथ भी समझौता हो जाए। लेकिन आखिर कब तक सहन करेगा कोई? निजाम और रजाकार मनमानी करते हैं, कत्लेआम लूटमार करते हैं। ये 45 बार हमारी सीमा में घुसपैठ, 325 लोगों की हत्या, 12 रेलगाड़ियों पर हमला, 1.5 करोड़ से भी ज्यादा रुपए की लूट, ये क्या है सब? लगता है कि हैदराबाद में दिन में रजाकार राज करते हैं और रात को कम्युनिस्ट। हिंदुस्तानी फौजियों ने भी हैदराबाद के इलाकों में घुसपैठ की है। ये झूठ है। हम हर दिन नए डेलीगेशन को मिलते हैं और वहाँ हैदराबाद के हवाई अड्डे पर पाकिस्तानी गोला बारूद और हथियार उतारे जाते हैं। हमारी ख्वाहिश है कि हैदराबाद का स्पेशल स्टेट का फैसला बिना किसी मिलिट्री ऑपरेशन के सॉल्व हो जाए। मैंने सुना है आपका जो सेक्रेटरी है वो गुजराती है। जी हाँ, और मैं चाहूँ तो कश्मीरी पंडित को भी नौकर रख सकता हूँ। बीवियाँ कितनी है? 2, और मैं जितनी चाहूँ उतनी रख सकता हूँ। और बच्चे? 6, लेकिन आप कान खोलकर सुन लीजिए,
आपकी ये चालें हैदराबाद में नहीं चलेगी। वहाँ के मुसलमान जान हथेली पर लेकर घूमते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हैदराबाद। अरे बैठ जाइए। शुक्रिया। और दूसरी बात ये है, लेकिन खड़े होकर नहीं, ये कोई पब्लिक मीटिंग थोड़ी है भाई। बैठ जाइए आराम से। हमें बैठकर बोलने की आदत नहीं है। आदत डाल दीजिए, आप बैठ पाएंगे, कोशिश कीजिए। अगर हम खड़े होकर बोले तो? आप बैठकर ही बात करेंगे। आपको मैं बहुत वक्त दूंगा, आप आराम से कहिए। यहाँ पर मेरे अलावा कोई और सुनने वाला है नहीं। जो कहना है वो आराम से कहिए। ये हिंदुस्तानी सरकार अपने आप को समझती क्या है? देखिए, हम आपको ऐसा सबक सिखाएंगे कि आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। आसमान में जब तक चांद सितारे चमकते रहेंगे तब तक हैदराबाद आजाद रहेगा। दुनिया की कोई भी ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और निजाम साहब की तो बात ही अलग है। वो खुदा के वालिन है। उनके लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं। हिंदुस्तानी फौजों को हैदराबाद में दाखिल होने से पहले हमारी लाशों के ऊपर से गुजरना होगा। और इस गलतफहमी में मत रहिए कि मरने वालों में सिर्फ हम ही होंगे। 1,40,00,000 हिंदुओं को इससे पहले मरना होगा। बोल लिया आपने। कहा आप 1,40,00,000 हिंदुओं को मरवा देंगे? हाँ, अगर हमें मजबूर किया गया तो। अच्छा, उस वक्त हम क्या कर रहे होंगे? हाँ, हमें क्या मालूम? तो तुम्हें मालूम होना चाहिए। आप सोच भी नहीं सकते हम क्या क्या कर सकते हैं। आप हमें धमकी दे रहे हैं? आप हमें जबरदस्ती रोक नहीं सकते। अरे कौन रोक रहा है? और वैसे भी कल सुबह हवाई जहाज से आप हैदराबाद रवाना कर दिए जाओगे और मुझे उम्मीद है कि आप सही सलामत पहुंच जाओगे। आपके निज़ाम को मेरा सलाम कहना और कहना कि मैं चाहता हूं कि उनकी और उनके परिवार की सेहत अच्छी बनी रहे। ये भी कहना कि जब कभी वो अपनी प्रजा को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचे तब वो अपने बारे में भी सोच ले, अपने बाल बच्चों के बारे में, अपनी जमीन जायदाद के बारे में, अपनी बेशुमार दौलत के बारे में। कश्मीर में स्थिति गंभीर है। कबायली घुसपैठियों और रियासत की फौजी टुकड़ियों के बीच यहाँ उरी के पास लड़ाई जारी है। गिलगिट पर वो कब्जा कर चुके हैं। श्रीनगर को बिजली सप्लाई करने वाला मोहरा पावर हाउस तबाह किया जा चुका है। कबायली बारामूला तक पहुंच चुके हैं, जो श्रीनगर से 33 मील दूर है। हमने बहुत देर कर दी। हमें 15 दिन पहले ही मदद भेज देनी चाहिए थी। मिस्टर नेहरू, न हम 15 दिन पहले कुछ कर सकते थे न अब। जब तक महाराजा हरि सिंह एक्सेशन पेपर पर साइन नहीं कर देते, हम मजबूर हैं। योर एक्सीलेंसी, अगर महाराजा हरि सिंह कुछ तय नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या करें? देखते रहें? कश्मीर को पूरी तरह से तबाह हो जाने दे? मिस्टर नेहरू, जब तक महाराज इंडिया के साथ कानूनन नहीं जुड़ जाते, हम कोई दखल नहीं दे सकते। कश्मीर जाने के लिए एक ही रास्ता है। अगर 2-3 दिन में कबायलियों ने उन पर कब्जा नहीं किया तो ये भी रास्ते बर्फ से ढक जाएंगे। और अगले 24 घंटों के अंदर कबायलियों ने श्रीनगर के हवाई अड्डे पर कब्जा कर लिया तो कश्मीर हमारे हाथ से चला जाएगा। मिलिट्री भेजने का मतलब है ऐलान जंग, और ये मुल्क अभी तक अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हुआ है। इस वक्त जंग का बोझ बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। योर एक्सीलेंसी, अभी अभी खबर आई है कि महाराजा हरीश सिंह श्रीनगर से सही सलामत जम्मू पहुंच चुके हैं और एक्सेशन पेपर पर दस्तखत करने के लिए राजी है। चलो, देर आए दुरुस्त आए। इस खबर ने सब कुछ बदल डाला। अब मिलिट्री भेजी जा सकती है। योर एक्सीलेंसी, हमारी फौजें पंजाब में दंगे रोकने के काम में लगी हुई है। उसे फौरन इकट्ठा करना मुश्किल है। और फिर उसे कश्मीर भेजेंगे कैसे? इतने प्लेन्स कहाँ पर है? इतने पायलट्स कहाँ से आएंगे? कश्मीर बचाना है, हर हाल में, किसी भी कीमत पर। जो भी जरूरी होगा वो किया जाएगा। How's the Iron Man of India? लोहा अब जंग पकड़ने लगा है।
फिर भी जंग के बाद जंग जीते जा रहा है। हैदराबाद के मसले को सुलझाने के लिए एक नया प्रपोजल है। मैं चाहता हूँ कि इस पर एक नजर डालें। इसे मैं किसी भी हालत में नहीं मान सकता। हैदराबाद को स्पेशल स्टेट देने का सवाल ही कहाँ उठता है। आपको अगर मंजूर नहीं है तो बात यही खत्म होती है। आइए सरदार, मुझे पूरा भरोसा है कि आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे और लॉन्ग लाइफ पाएंगे। आपने हमें जो काम में साथ दिया है उसका मैं शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। आप जा रहे हैं, दोबारा मुलाकात न हो, लेकिन इस मुश्किल दौर में आपने हमारे लिए जो किया है उसका बदला हम कैसे चुकाएंगे। इसका इतना ही महत्व है। सरदार, आप तो इनकार कर चुके थे। निजाम का दिमाग एक जगह ठहरता नहीं है। वो इस समझौते पर कभी दस्तखत नहीं करेगा। वो इसे अप्रूव कर चुके हैं सरदार। वो वाइसरॉय के दबाव में आकर, क्योंकि वाइसरॉय की इच्छा है कि वो लंदन जाए उससे पहले हैदराबाद की समस्या हल हो जाए। रिजवी ये होने नहीं देगा, क्योंकि इस समझौते के लागू होते ही रिजवी और उसके गुंडे सत्ता से बाहर हो जाएंगे। रिजवी निजाम को कभी दस्तखत करने नहीं देगा। और अगर उसने दस्तखत कर दिए तो? राजनीति में कभी कभी खतरे भी उठाने पड़ते हैं, लेकिन बापू के शब्दों में कहूँ तो मेरी आत्मा की आवाज तो यह कहती है कि निजाम दस्तखत करके मुझे धोखा नहीं देगा। हैदराबाद एक्शन का नाम होगा ऑपरेशन पोलो। मुख्य सेना सोलापुर से चलकर हैदराबाद पहुंचेगी और दूसरी छोटी सेना बेजवाड़ा से चलकर हैदराबाद पहुंचेगी। सर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कहना है कि 42,000 की सेना और 2 लाख से ज्यादा रजाकार इतनी जल्दी टूटने वाले नहीं है। वो कहते हैं सरदार साहब इस गलत फहमी में है कि वो 7 दिन में हैदराबाद पर फतेह हासिल कर लेंगे। जनरल से कहना मुझसे शर्त लगाए, वो 7 दिन भी नहीं टिकेंगे। सर, क्या इस वक्त ऑपरेशन पोलो लॉन्च करना ठीक रहेगा? क्यों? नेहरू जी विदेश गए हैं और आप देखो मेनन, जो होना है वो रोक नहीं सकते। हमने निजाम को समझाने की बहुत कोशिश की, अभी नहीं। अभी ये देश का नक्शा बिल्कुल साफ हो जाना चाहिए। इस देश को अब एक होना ही होगा। મણીબેન, એક વાત કહું? હા બોલો ને સાહેબ. તમે આ થીગડાવાળી સાડી પહેરો છો, તમે કોઈ કરમસદના પટેલની દીકરી નથી, નાયબ વડાપ્રધાનના દીકરી છો. ઇંગ્લેન્ડના વાયસરોય તથા મોટા મોટા અધિકારીઓ સરદારને મળવા આવે છે, તો તમે આવી સાડી પહેરીને શું સાબિત કરવા માંગો છો? શું બોલવું, આ તો મારાથી ઉંમરમાં મોટા છે. મહાવીરભાઈ, તમારી વાત સાચી છે. મારી દીકરી સાડીમાં થીગડું મારે છે, એમાં કાંઈ સાબિત કરવા નથી માંગતી. એને ખબર છે તે નાયબ વડાપ્રધાનની દીકરી છે, અને મને ખબર છે હું નાયબ વડાપ્રધાન છું. 25 વર્ષથી મેં મારા ચશ્માએ નથી બદલ્યા. દેશ આઝાદ થયો છે, નવજાત શિશુ જેવો છે. દેશને ઊભા થવામાં કરોડો રૂપિયાની જરૂર છે, એટલે જેટલા બચાવાય એટલા બાપ દીકરી બચાવી રહ્યા છીએ, જેથી દેશના વિકાસમાં કામ લાગે. ત્યાગી સાહેબ, ખોટું ના લગાડતા. આ સાડીનું થીગડું મારા બાપની ગરીબાઈનું નથી, મારા બાપની સચ્ચાઈનું છે. આ દેશનો વિકાસ થાય તે માટે સરદાર જ નહીં, તેમના પરિવારના સભ્યોએ પણ અમૂલ્ય ભાગ ભજવ્યો છે. એ સરદાર પટેલના જ સંસ્કાર હતા. આપણે સરદાર પટેલના બલિદાનને એળે ના જવા દઈએ. આઝાદ દેશના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય વિશેના તેમના વિચારો ઉપર ખરા ઉતરીએ. આપણે દરેક ક્ષેત્રે ઉન્નતિ મેળવીને આપણું કાર્ય પૂરી નિષ્ઠાથી કરીએ તથા આપણું અને આપણા દેશનું ગૌરવ વધારીએ. सबसे ऊंचा था वो है और रहेगा
की शान था वो, सदा अमर रहेगा। सबसे ऊंचा है सबसे शानदार, लोह पुरुष है हमारा सरदार। फौलादी जिगरा मजबूत था वो, इस धरती माँ का सपूत था वो। किसानों का अपना सरदार था वो, हुकूमत पर तेज असरदार था वो। देश को जोड़ा शिल्पकार था वो, सोमनाथ का जीर्णोद्वार था वो। ऋण आज उसका चुका रहे हैं हम, उसे अंबर से ऊंचा, अंबर से ऊंचा, अंबर से ऊंचा, अंबर से ऊंचा उठा रहे हैं। सबसे ऊंचा है सबसे शानदार, लोह पुरुष है